ویلکم ٹو مفتی محمد ندیم حسینی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ بے نمازی کا روزہ ہوتا ہے یا نہیں؟ تو پہلی بات یہ ہے، رمضان کا روزہ الگ عبادت ہے اور نماز الگ عبادت ہے۔ ایک بندہ روزہ رکھ رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، روزے کا اجر پا رہا ہے اور نماز نہ پڑھنے کا گناہ پا رہا ہے۔ یا ایک بندہ رمضان میں روزے تو نہیں رکھ رہا، نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کی نیکی حاصل کر رہا ہے اور گناہ روزے کا پاتا جا رہا ہے۔ یا اسی طرح ایک بندہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا، روزہ بھی نہیں رکھ رہا، تو گویا اس بندے نے نماز کا گناہ علیحدہ پایا، روزے کا گناہ علیحدہ پایا۔ یا ایسا بندہ جو رمضان میں نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، تو گویا وہ نماز کا اجر بھی پا رہا ہے اور روزے کا اجر بھی پا رہا ہے۔ تو لہٰذا اس بات سے پریشان نہ ہو، اگر کوئی بندہ نماز نہیں بھی پڑھتا تو اس کا روزہ تب بھی معتبر ہوگا، کم از کم روزے کے گناہ سے تو بچے گا۔ اور اس لیے کوئی بندہ اگر کسی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہا ہے یا کوئی مجبوری ہے تو ایسا بندہ اپنے روزے کو تو کم از کم رکھے، اس گناہ سے تو بچے۔ لیکن اگر کوئی بندہ نماز کے بدلے سوچتا ہے کہ نماز تو پڑھنی نہیں، روزہ میرا کس چیز کا، تو میرا بھائی یہ بہت بڑی اس کی بھول ہے، غلطی ہے، غلط فہمی کا شکار ہے۔ تو لہٰذا اسے اس بات سے توبہ کرنی چاہیے، نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اگلا سوال، ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے قطروں کا مرض ہے، کپڑے پاک نہیں رہتے، نماز نہیں پڑھ سکتا، تو میں روزہ کیسے رکھوں؟ تو میرا بھائی یہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ روزہ الگ عبادت ہے، نماز الگ عبادت ہے۔ تو لہٰذا اگر نماز نہیں پڑھ رہا تب بھی روزہ رکھنا پڑے گا۔ باقی رہی بات کہ آپ کا مرض ہے، جو آپ کی مجبوری مسئلہ، تو اگر آپ کا یہ مسئلہ ایسا ہے کہ بھی جو آپ کو مسلسل قطرے آ رہے تو کوئی بات نہیں، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا حل موجود ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ اگر بندہ نماز کا جب وقت ہو جاتا ہے اس وقت استنجا کر لے اور کپڑا اگر نئے کپڑے یعنی صاف کپڑے پہن سکتا ہے وہ پہن لے، یا انہی کو دھونا چاہے انہیں دھو لے اور نماز پڑھ لے، تو اس طرح کرنے سے اس کی وہ نماز ادا ہو جائے گی۔ باقی رہا اس کے نماز کے دوران بھی اگر قطرے آ جاتے ہیں تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس مسئلے کو اپنے متعلقہ علماء سے پوچھ لیں، یہ بڑا مسئلہ بن چکا ہے آج۔ آئے دن کوئی نہ کوئی سوال یہ کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی میرے کپڑے پاک نہیں رہتے، مجھے قطروں کا مرض ہے۔ تو اس لیے میں نے ذکر کر دیا، آپ اپنی اس کیفیت کو وقت کے جو علماء ہیں، آپ کے قریبی ہیں یا متعلقین میں سے، ان کے سامنے اپنے اس مسئلے کو ذکر کریں، ان سے حل اس کا حاصل کریں۔ اگر وہ مسئلہ ایسا ہے، آپ کا مجبوری ایسی ہے کہ اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ جس میں آپ اپنی نماز پڑھ سکیں، درمیان نماز بھی قطرہ آ جاتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسے ہی نماز پڑھ لیں تو نماز آپ کی ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کو اتنا ٹائم مل جاتا ہے، مثال کے طور پر آدھے گھنٹے بعد قطرہ آ رہا ہے، تو جب ایک دفعہ قطرہ آیا اس کے بعد آپ اچھی طرح استنجا کر لیں، اور کپڑا اگر غلط یعنی کپڑا خراب ہوا تو اسے دھو لیں یا بدل لیں اور نماز پڑھ لیں دوبارہ قطرہ آنے سے پہلے پہلے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا، اتنا ٹائم نہیں ملتا، تو اس کے لیے میں مسئلہ ذکر کر چکا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا، ہر بندے کا معاملہ مسئلہ الگ ہوتا ہے، تو اپنی کیفیت بتا کر اپنے علماء سے رابطہ کرے اور اپنے مسئلے کا حل حاصل کرے۔ اور اگلا سوال کہ روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو میرے بھائی بوس و کنار کرنا، بغل گیر ہونا، بہتر یہ ہے کہ بندہ یہ کام نہ کرے، بچے۔ کیوں؟ عام طور پر جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، پھر انسان کے کپڑے بھی خراب ہونے کا احتمال ہے اس میں، اور بعض دفعہ اس سے زیادہ احتمال یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان غلطی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ بعض لوگوں کی طرف سے یہ رائے آئی ہے، یہ مسئلہ آیا ہے سامنے کہ ایسے نوجوان جو نئی نئی شادی ہوتی ہے تو گویا وہ یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں جس سے میرے بھائی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر یہ معاملہ اس مرد پر ویسے ہی ہو گیا، یعنی غسل فرض ہو گیا بوس و کنار کی حالت میں، تو اس سے روزہ ٹوٹ گیا، اس بندے پر توبہ استغفار لازم ہے، اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر ایسا معاملہ کر لیا کہ اپنی بیوی سے ہم بستری ہو گیا، تو میرے بھائی اب یاد رکھنا اس بندے پر گویا
तौबा भी लाजिम है, उस रोज़े की कज़ा भी लाजिम है। और तीसरा जो बड़ा उसका जुर्म है, जो उस पर उस जुर्म की बिना पर जो उसके ऊपर हुक्म वारिद हुआ, वो ये है कि उस एक रोज़े को तोड़ने के बदले उस बंदे पर 60 रोज़े लगातार लाजिम होंगे। एक रोज़े की भी नागा नहीं कर सकता दिन में, जब नागा हो गया तो दोबारा फिर गिनती शुरू हो जाएगी। तो इसलिए बोसो किनार का मतलब यह है कि इंसान वो अपने नफ्स के ऊपर काबू रखे तो गुंजाइश है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा मामला होता है तो फिर ये कराहत के दर्जे में चला जाएगा, मकरूह होगा। और अगर उससे भी अगर गुस्ल फ़र्ज होने की कैफियत बन गई तो वो मेरे भाई नाजायज़ हो जाएगा, गुनाह हो जाएगा, हराम हो जाएगा। इसलिए ऐसे अफराद को एहतियात करनी चाहिए। दाढ़ निकलवाना, अगला सवाल यह है कि भाई रोज़े की हालत में दाढ़ दांत निकलवाए जा सकते कि नहीं। मेरे भाई अगर आप इस दाढ़ और दांत के निकलवाने से वो जो दवा लगाई जाती है या खून निकलता है या उसको हलक में जाने से कंट्रोल कर सकते हैं तो निकलवाई जा सकती है रोज़े की हालत में, वगरना ऐसा नहीं होगा। अगर आपने निकलवा ली और वो खून या वो जो दवाई वगैरह लगाई है वो हलक में जा रही है या चली गई तो उससे मेरा भाई रोज़ा टूट जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा, रोज़े कज़ा करनी पड़ेगी। और अगला सवाल ये है कि रोज़े की हालत में बंदा तेल लगा सकता है या नहीं। तो मेरे भाई तेल अंदर नहीं जाता, सर पे लगाया जाता है, तेल से कोई मसला नहीं, तेल लगाया जा सकता है, सुरमा भी लगाया जा सकता है। अगला सवाल ये किया जाता है कि भाई रोज़े की हालत में मिसवाक, ताज़ा मिसवाक करने जायज़ है कि नहीं। मेरे भाई ताज़ा मिसवाक हो या पुरानी हो, मिसवाक मीठी हो या कड़वी हो, जैसे मर्जी जायके की हो लकड़ी की मिसवाक, तो उसको करने में कोई हर्ज नहीं है। मिसवाक की जा सकती है, चाहे उसका जायका मुंह में महसूस हो रहा हो, कोई परेशानी की बात नहीं है, समझे ना। लकड़ी वाली मिसवाक करने की इजाज़त है। बाकी वो जो टूथपेस्ट वगैरह वो की जाती हैं वो गलत है, वो मकरूह के दर्जे में है। अगर उसके मतलब कुछ ना कुछ हिस्सा अलग में चला गया तो रोज़ा टूटने का शायबा है। लेकिन मिसवाक जो कर रहे हैं वो एक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उसके करने में कोई हर्ज नहीं, चाहे वो मिसवाक जैसे भी हो, ताज़ा हो, जायका हो उसका, कड़वा मीठा जैसा भी, उसमें कोई मसला नहीं। और अगला सवाल, दिन के आखिर में यानी शाम के वक़्त यानी असर के करीब करीब मिसवाक करना कैसा है, मकरूह है या जायज़ है। तो मेरे भाई मिसवाक मैं बता चुका हूँ, मिसवाक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। दिन के शुरू में करें, दिन के दरमियान में करें, चाहे दिन के आखिर में करें, यानी रोज़े के अफ्तारी से चाहे चंद लम्हात पहले भी कर लें, मिसवाक करने में कोई हर्ज नहीं। तो फिर सवाल ये होता है कि भाई जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ेदार के मुंह की जो बदबू है वो स्मेल अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, तो अगर आप उस टाइम करोगे तो वो बदबू को आप जो मुंह से आ रही है, स्मेल आ रही है, उसको आप साफ़ कर रहे हो, तो वो तो करना ठीक नहीं है। अल्लाह को उस पर प्यार आता है, अल्लाह उस पर राज़ी होते हैं और तुम उसे दूर कर रहे हो। तो याद रखना मेरे भाई, वो जो स्मेल आ रही है वो मुंह की स्मेल मुराद नहीं है। मैदा सुबह से लेकर शाम तक खाली रहता है, तो जब मैदा सुबह से शाम तक खाली रहा, उस मैदे से निकलने वाली स्मेल आएगी तो मुंह के ज़रिए से, ठीक है। तो वो जो अल्लाह को पसंदीदा है, मुश्क से भी ज़्यादा अच्छी है, मुश्क से भी ज़्यादा महबूब है, वो मैदे से निकलने वाली स्मेल है, वो मुंह से निकलने वाली नहीं, दांतों से निकलने वाली नहीं। आम तौर पर जब हम मिसवाक करते हैं तो वो दांतों पर की जाती है, तो गोया दांत साफ करने के लिए होती है, तो मैदे तक नहीं जाती वो, तो लिहाजा वो मैदे से निकलने वाली जो है ना स्मेल, वो अल्लाह को पसंदीदा है। बाकी रोज़ेदार के मुंह से वैसे अगर कोई दांतों में साफ़ ना करने की बिना पर आ रही है, उसको साफ़ करने में कोई हर्ज नहीं है। उसे आप चाहे दिन के शुरू में साफ़ करें, चाहे दरमियान में करें, चाहे शाम में करें, कोई हर्ज नहीं उसमें। और धुआं, अगला सवाल है कि भाई धुआं अगर हलक में चला जाए, मुंह में चला जाए, नाक के ज़रिए चला जाए, तो इसकी कैफियत याद रखना। अगर वो धुआं अपने इख्तियार से बंदा लेके जा रहा है, ठीक है, तो ये नाजायज़ है, इससे रोज़ा टूट जाएगा। मतलब सिगरेट का धुआं हो गया, हुक्का है, वो इसी वजह से तो हराम है, रोज़े की हालत में जायज़ नहीं है कि वो भाई पेट में हलक
के ज़रिए, मुंह के ज़रिए, तो जाता तो सिर्फ धुआं है और वही वापस आ जाता है, बाकी कोई चीज़ तो नहीं गई। अब वो अपने इख्तियार से बंदा लेकर जा रहा है, इससे रोज़ा टूट जाएगा। ऐसे सिगरेट है, उसका भी सिर्फ धुआं ही जाता है अंदर, अगर ये है तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। बाकी रही बात, वैसे आप घर पे खाना बना रहे हैं, ठीक है, ख़वातीन बनाती हैं, वो आग पे खाना बना रही है, वो धुआं अगर चला जाता है सांस के ज़रिए, ठीक है, मुंह के ज़रिए चला जाता है, या कहीं आप सफ़र करते हुए जा रहे हैं और रास्ते में कहीं धुआं आ गया, गाड़ियों का धुआं आ गया, या कहीं पर खेत में आग लगी हुई है उसका धुआं आ गया, समझ आई, इससे कोई परेशानी नहीं, इससे आपके रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगला सवाल ये किया जाता है कि भाई सहरी किए बगैर रोज़ा रखना ठीक है या नहीं। सहरी नहीं कर सका, मेरे भाई सहरी तो करनी चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत और मुबारक अमल है ये। फरमाया कि सहरी का खाना इतना बबरकत होता है कि ख़ुद प्यारे नबी ने फरमाया अल्लाह इस पर अपनी ख़ास रहमत नाजिल फरमाते हैं। सिर्फ उस खाने का जिक्र है, बाकी आम खानों पर यह जिक्र मुस्तकिल नहीं है जितनी इसकी फजीलत है। हाँ, अगर रही बात ये आँख ना खुली तो कोई बात नहीं, दिन में आप नीयत कर ले अपने रोज़े की, जब तक कि आपने खाया पिया ना हो ज़वाल से पहले पहले, तो ऐसा कोई मसला नहीं, आपका रोज़ा हो जाएगा। और अगला सवाल ये किया जा रहा है कि भाई गरगरा रोज़े की हालत में गुस्ल फ़र्ज हो गया, ठीक है, तो हलक तक जो गरगरा किया जाता है, गरारा भी कहते हैं उसको, तो जो किया जाता है आया उसकी इजाज़त है या नहीं। तो याद रखना कि रोज़े की हालत में करना मना है। क्यों? आम तौर पर हलक में पानी चला जाता है, रोज़ा टूट जाएगा। बाकी रही बात, अगर किसी पे गुस्ल फ़र्ज हो गया तो कोई बात नहीं, सिर्फ कुल्ली करे, गरगरा वो ना करे। और जो है आमतौर पर वज़ू करना रोज़े की हालत में, तो उसमें भी यही हुक्म है कि गरगरा ना किया जाए। क्यों? हलक में पानी जाने का ख़तरा है। और अगला सवाल ये किया जा रहा है कि भाई कुल्ली करते हुए एक दफ़ा हमने थूक दिया, 2 दफ़ा थूक दिया, पानी का जो जायका मुँह में तो है, मुँह में जो जायका है पानी का, कुछ हिस्सा बाकी है, तो वो हलक में चला जाए तो उससे रोज़े का क्या हुक्म है? तो याद रखें, जब आप कुल्ली करते हैं तो कुल्ली करने के बाद जब आपने 2 पानी बाहर निकाल दिया, उसके बाद एक दफ़ा और अच्छी तरह मुंह से निकाल दो, थूक दो। उसके बाद अगर जो पानी फिर भी वो ज़र्रा या मुंह में कुछ हिस्सा बाकी है वो अगर हलक में चला जाता तो कोई मसला नहीं। बाकी जो ये करते हैं ना, एक दफ़ा कुल्ली कर दी, बाहर पानी निकाल दिया और बाकी जो हिस्सा बचा अंदर जा रहा है, भाई इसके ऊपर इश्काल है। इससे एहतमाम यानी इस चीज़ का एहतमाल है कि भाई रोज़ा कहीं टूट ना जाए आपका, सही तरह बाज़ों पानी नहीं निकल पाता, तो एक दफ़ा पानी बाहर फेंकने के बाद दोबारा एक दफ़ा अच्छी तरह थूक दो। उसके बाद अगर मुंह में पानी का जायका बाकी है, असर बाकी है, तो उससे रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और नाजायज़ चीज़ से रोज़ा अफ्तार करना, मेरे भाई बड़ी अहम बात है ये कि अगर कोई बंदा हराम चीज़ से, नाजायज़ चीज़ से रोज़े को अफ्तार कर रहा है, इसकी इजाज़त नहीं है, उसकी वजह से आपका रोज़ा जो पूरा तो हो चुका, लेकिन अल्लाह के नज़दीक ये अमल बहुत नामुनासिब है और बहुत बुरा है। इतनी बड़ी इबादत कर रहे हैं, सुबह से शाम तक रुक रहे, फिर हराम चीज़ से अफ्तार करना। इसी वजह से उलमा फरमाते हैं कि बंदे ऐसे के पास अफ्तारी की दावत में भी ना जाओ जिसकी रोज़ी आपको पता है उसकी कमाई हराम है, या जिसकी कमाई मुकम्मल हराम, या इसी तरह अक्सर कमाई उसकी हराम है, तो ऐसे बंदे की दावत भी कबूल ना करो। या अगर कबूल करनी भी पड़ जाती है, हर तरह के लोगों के साथ वास्ता पड़ता है, तो फिर भी बंदा क्या करे, कम अज़ कम अपने पास अपनी जेब में खजूर लाजमी रखे, ठीक है, उस खजूर से अपना रोज़ा अफ्तार कर ले और फिर बाद में खाना खा ले। बाज़ दफ़ा ऐसे होते हैं ना, ऐसे मौके पे जाना पड़ता है, कुछ मामला आते हैं, भाई क्या करें, तो बेहतर यह है, या फिर यह है कि इंसान पानी आमतौर पे घर का ठीक ही होता है, पानी घर का ही होता है, तो अगर वहाँ पर आप खजूर नहीं ले जा सकते तो कम अज़ कम पहले अपना 1 घूंट पानी पी लें, उससे अपने रोज़े की अफ्तारी कर लें, बाकी खाना खा लें। क्यों? असल में उस रोज़ी जो मुंह में जाएगी, पहला लुकमा जाएगा, उस लुकमे के ज़रिए से हमने अपने इस रोज़े को अल्लाह के सामने पेश करना है। तो अफ्तारी गलत और नाजायज़ और हराम माल से ना की जाए।